AC चला लो, बैठ जाओ, चलो. Okay, so what we are going to do today is inequalities and modulus. So we'll start by understanding inequalities. So there are two types of inequalities that we are going to study. One is known as a linear inequality and the second is known as a quadratic inequality. So we are going to study both linear and quadratic inequalities. ये इसका प्लग निकाल दो, ये क्योंकि इन्वर्टर पे कैसे ऑन कर रखा है, ये इसका प्लग है ना, हाँ निकाल दो बाहर. So we'll study linear and quadratic inequalities. पिछली क्लास में अपन ने quadratic inequalities के बारे, quadratic equations के बारे में पढ़ा था. तो आज हम पहले quadratic inequalities टच कर लेते हैं और उसके बाद हम linear inequality भी टच करेंगे. ठीक है, since we studied yesterday only, हमने कल ही पढ़ाई करी थी quadratic की equation की, इसलिए आज हम quadratic inequality से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. So first you need to understand what is inequality. When the difference of two quantities is not zero, then we say it is inequality. For example, when we say a minus b is equal to 0, this is known as equality. When you have a minus b is not equal to 0, that means either it could be positive value or it could be a negative value. In both the cases, it becomes inequality. Right, so that is the basic fundamental understanding of inequality. So difference of two quantities, if it is either positive or negative, both the case it is inequality. Right. Then there are certain rules we need to understand in terms of inequality and the symbols of inequality. For example, we say, let us say 3 is basically more than 2, right? So जो चीज बड़ी होती है हम वहां पे ये greater symbol लगाते हैं. So 3 is greater than 2. In other words, we can say 2 is less than 3. So we may say A is greater than B, right? But there's another symbol where we say A is greater than or equal to B. So that is the symbol. Or we may say B is less than or equal to A. So there are two possibilities. या तो B A के बराबर है और या B जो है A से छोटा है. तो ये दो possibilities बनती हैं inequalities की. अब there are certain rules that we need to understand. However, it is easy if you don't remember in terms of variables, but if you remember in terms of constants. For example, we know here that 3 is greater than 2. So if I add, let us say, whatever, let's say I add 1 on 1 both the sides. Will my inequality change? No, it will not change. I will have 4 is certainly greater than 3. समझ में आ रहा है? 4 is certainly greater than 3. So if A is greater than B, let's say A is greater than B, if I add some positive quantity both the sides, it is not going to change my inequality. What if I subtract? For example, we have 4 is greater than 3. If I subtract 1 and 1 on both the sides, what do you get? Does inequality change? No, inequality does not change because we have 3 is greater than 2. However, if the negative quantity is large enough so as to make both the sides negative, will it change inequality? Yeah, yes, no? It will not change. Say, for example, what I'm trying to say, we know that 4 is greater than 3, no doubt about that. Let's say I subtract minus 5 on both the sides, right? So this becomes negative, this becomes minus 1, this becomes minus 2. Still minus 1 is greater than minus 2, please understand. The perception is when there is negative on both the sides, when there is negative on both the sides, we feel that sign needs to be changed. Yes, that is true. But then how are we getting the negative side sign on both the sides is very important. If you get negative by subtracting, it does not make any change in inequality. So you can add or subtract in an inequality without changing the sign. Your sign will not change. Even when the values are negative. For example, we know minus 2 is greater than, let us say, minus 3, for example, right? Now, if you add on both the sides, what happens? If you take 1 on this side, 1 on this side, so what do you get? Minus 1 and you get minus 2. You still see that minus 1 is greater than minus 2, right? Moreover, similarly, if you have minus 2 is greater than minus 3, let's say you subtract 5 on both the sides, you still get minus 5, which will certainly is greater than minus 8. What I'm trying to say is when A is greater than B, you may add or subtract anything on both the sides. Your inequality does not change.
आ रही बात समझ में? Inequality does not change even though the sign may change on both the sides. That's immaterial. Sign will not change. So what are the conditions when the sign is going to change? We will see. So far we have seen addition and subtraction on both the sides. Similarly, let us say A is greater than B. What if I multiply on both the sides? We know that 3 is greater than 2. If I multiply 4 on both the sides, what happens? It becomes 12 is greater than 8. Makes no difference, right? So when you are multiplying a positive quantity on both the sides, my inequality does not change. When we're multiplying positive quantity into positive quantity, my inequality does not change. -2 is greater than -3. You multiply 2 on both the sides. What do you get? You get -4 is still greater than -6. That means when you are multiplying or dividing a number on both the sides of inequality with a positive quantity, your inequality does not change. Right? समझ में आ रहा है हम सबको ना? Now, if we multiply or divide by a negative quantity, that is when the inequality changes. Say, for example, 3 is greater than 2. I multiply by -1 on this side and I multiply by -1 on this side. I get this -3, I get this as -2. My inequality changes. कोई नहीं, होपफुली ये ना ऑन रह गया था. वो लाइट बंद कर दो और एक पंखा बंद कर दो. बोलना तो नहीं चाहिए इतनी जल्दी, बट लाइट पंखा बंद करो, पंखे से. हाँ, फिर चल जाएगा. हाँ, एक चल दो. हाँ बस ठीक है. Right. So when you are multiplying on negative on both the sides, my inequality change. Similarly, when I divide on both the sides by a negative quantity, for example, -1, -1, you see, dividing a value by negative quantity is in a sense multiplying a value by its reciprocal. So which this itself, you can multiply -1 up and down. So this will become once again -3 and -2. Once again, my inequality changes. So whenever you multiply and divide by two sides of an inequality by a negative quantity, the sign changes. Now the question arises, is there any other way where the sign will change? Let's say you don't want to multiply on both the sides by quantity. Then will the sign change? Yes, the sign will change if you are raising it to the negative power. For example, I raise it to the power of -1 and -1. So this will become 1/3. This will become 1/2. Inequality changes. Or -2, -2, whatever. So when you're raising a number to a negative power, even then your sign will change. So online, am I getting all of you? When are the signs going to change? भाई कोई तो रिस्पॉन्ड कर दो. हाँ ना, पता नहीं. सर एक बार रिपीट कर दो दोबारा. कहाँ से? मैं तो अभी आई हूँ सर, 2 मिनट हुआ. मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है, ठीक है, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है a इज ग्रेटर देन b, अगर अपन दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. मान लो a इज ग्रेटर देन b, अगर अपन इधर प्लस माइनस के कर दें, इधर प्लस माइनस कर दें, नो चेंज इन इनइक्वालिटी. ठीक है. बट अगर हम a इज ग्रेटर देन b हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं k से, ठीक है, नो चेंज इफ k इज पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव क्वांटिटी तो कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. साइन इनइक्वालिटी चेंजेस. हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब. हाँ सर.
चौधरी सर, CHAU चौधरी। हाँ चौधरी प्रोफेसर जी। प्रेमचंद चौधरी, PC चौधरी। हाँ बस PC चौधरी। 1946 सेक्टर 16-17 निसार। हाँ हाँ बिल्कुल यही है, -17। किसका सर? टाइम, अच्छा ये जो तो प्रिंसटन एजुकेशन सर, प्रिंसटन एजुकेशन, NCETON, CETON, ये सर। यस हाँ जी हाँ बिल्कुल। एजुकेशन EDU, दैट्स इट, बस यही है प्रिंसटन एजुकेशन सर। पार्टनर डाल दीजिए सर, एक ही बात है पार्टनर। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ डाल दीजिए सर। yes. नहीं सर अभी तो नहीं। ठीक जी सर, जी ठीक है सर। नहीं सर, आई एम नॉट रिक्वायर्ड सर। ओके सर। ओके ठीक है, मैंने ये बताया था उसी तरीके से साइन चेंज होगा व्हेन यू आर रेजिंग इट टू द पावर ऑफ नेगेटिव पावर से। A इज ग्रेटर देन B, मान लेते हैं पावर K किया, पावर किया, नो चेंज। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा A और B का, मतलब ऑड इवन, बट फंडामेंटली एज्यूमिंग कि A एंड B इज पॉजिटिव, तो साइन विल चेंज, इनइक्वालिटी विल चेंज when raising to the power of negative। ठीक है, हाँ कई सारे कॉम्बिनेशन है। अब A और B पॉजिटिव मान रहे हैं हम फिलहाल तो, लेकिन अगर जो आप कह रहे हो मान लेते हैं 2 इज ग्रेटर देन -3, अगर हम नेगेटिव पावर रेज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा -1/3। सो वंस अगेन अवर साइन इज माइनस, तो आएगा ना, अवर साइन इज नॉट चेंजिंग इन दिस केस, राइट। उसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा ये अगर दोनों नेगेटिव हैं फिर हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए एज्यूमिंग कि भाई A एंड B पॉजिटिव है, मतलब तब हम ये जनरलाइजेशन कर रहे हैं, अदरवाइज हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव B नेगेटिव अलग एक केस बनेगा, ऐसे केसेस बनेंगे कई सारे, बट इन जनरली लेट अस से A एंड B आर पॉजिटिव देन दिस कैन हैपन। दोनों नेगेटिव होंगे तो केस रिवर्स हो जाएगा, उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और ऑड इवन का भी चक्कर पड़ेगा, अगर दोनों नेगेटिव है या कोई भी एक नेगेटिव है देन K इज ऑड और इवन बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे इनइक्वालिटी का मतलब होता है, और ये बेसिक रूल्स होते हैं कि इनइक्वालिटी कब बदलेगी और कब नहीं बदलेगी। ठीक है, सो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी की। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देखना चाहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो हमने कल कई सारे क्वेश्चंस किए थे इस एक्सप्रेशन पे, x² - 5x + 6 = 0। we solved this equation, right? How did we solve? We solve it by splitting the middle term. So we had x² - 2x - 3x + 6 = 0. You have x - 2 - 3 x - 2 = 0. So we have x - 3 into x - 2 = 0. We have x = 2 and we have x = 3. Now what can happen is, this is an equation, right? Now the question may be x² - 5x + 6
is greater than 0. It could be greater than equal to 0. It is less than 0. It is less than or equal to 0. So these are the 4 possibilities that can exist, that can happen in a question. So let us take one by one. Let us say we are talking about this particular equation. Not much of a difference, but yes, it is very, very critical in understanding where the difference between greater than and greater than and equal to. So let's say I am having x square minus 5x plus 6. Let's say I am talking about a greater than 0. So what do? You have to follow the same process. जो भी यहाँ पे दिया, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा. कहाँ पहुँचना पड़ेगा? x minus 3 into x minus 2 is greater than 0. यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा. Now, of course, I'm going to give you a shortcut of handling this question, but to be able to understand, I'm just trying to get into details ताकि बस समझ में आ जाए क्यों है, कैसे है. देखिए, 2 चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. एक तो केस ये बन सकता है. उसी केस में दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा. लेकिन दूसरा भी केस बन सकता है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी. ठीक है. तो अब अगर अपन दोनों केसेस को सॉल्व करें, केस 1 को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब है x minus 3 is greater than 0. This implies x is greater than 3. From here, I have x minus 2 is greater than 0. This implies x is greater than 2. So what do I really have here? What I really have in these terms that x की वैल्यू जो है, मान लेते हैं नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3. One of the statements saying that x की वैल्यू मेरी 3 से बड़ी है, and the second statement is saying x की वैल्यू मेरी 2 से बड़ी है. Right. Now, whenever there are two areas that x is greater than 3 or x is greater than 2, what is the answer that we are going to consider? See, we have to get a sure shot answer. So for example, x is 2.5. For example, right? So we are talking about a value which is lying here, somewhere here. So if you're talking about the value which is lying here, will it satisfy my equation or not? You see, if you take 2.5, so x 2.5 minus 2 is what, 0.5. But when you take 2.5 minus 3, you have minus 0.5. So minus 0.5 plus into plus 0.5 is minus 0.25. So this is not true, right? So you have to understand the solution always is the common portion. This is the solution. This area is my solution. जो common रहेगा, यानी इसका according to first statement मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? मेरा आंसर पूरा ये होना चाहिए था, ये वाला. अकॉर्डिंग टू सेकंड मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? ये रेड वाला पोर्शन. तो मेरा आंसर कौन सा होगा? जो कॉमन पोर्शन होगा वो मेरा आंसर होगा. सो आउट ऑफ दीज टू आई हैव टू टेक दिस एज एन आंसर. सो केस 1 gives me an answer that x is greater than 3. Now we have to consider case 2. In second case, what I need to have is both negative. So if I have, if I have x minus 3 has to be less than 0, this would imply x is less than 3. Here I would have x minus 2 is less than 0. This would imply x is less than 2, right? So I'm having two scenarios. One of the scenario is saying x is less than 3. So x is less than 3 का मतलब है we are talking about this area. And x is less than 2 का मतलब है we are talking about this area, right? According to x is less than 3, my answer must be this entire, let's say, this green portion. But using this x is less than 2, it restricts my solution so when I take x is less than 2, so my common area is only this. This is my common area. So if you look carefully, what is my solution set? Solution set जहाँ पे red वाली line है वो मेरा solution set है. अगर मैं पेंसिल यूज करूं तो यानी कि ये या तो ये मेरी वैल्यू है या तो ये मेरी वैल्यू है. इसको एक फ्रेश ग्राफ में समझाऊं तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? यहां से हमारा बनता है x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है और यहाँ पे मेरा आंसर बनता है 2 से छोटी है. So this is my solution set using case 1 and case 2. So this can be written as, कहां तक जा रहा है? माइनस इंफिनिटी से जा रहा है. कहां तक आ रहा है? 2 तक जा रहा है. ये यूनियन 3 से कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है. अब ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये जो गोल वाले ब्रैकेट होते हैं इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट. नहीं, ये एक्सक्लूडिंग होता है, ये ओपन ब्रैकेट है. ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि माइनस इंफिनिटी से 2 तक जा रहा है, बट क्या 2 इज अ पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन? नो, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन. इफ इट इज written like this, it is closed bracket.
So closed bracket का मतलब होता है कि that point is a part of my solution. Say for example, in this case, let us say my question was x minus 3 into x minus 2 is greater than 0. If I were to put x as 2, for example, this would have become 0. So I know that 0 is not greater than 0 because 0 is equal to 0. So इसका मतलब है 2 I cannot take my solution. Similarly, I can't take 3. If I take x is equal to 3, this will become 0. So 0 into something is 0. So my condition is that if this is the question, x minus 3 is into x minus 2 is greater than 0, then my answer is minus infinity to 2 union 3 to infinity. Now, if I were to change this question, for example, if I were to say x square minus 5x plus 6 is greater than or equal to 0, everything remains same, but only thing is my answer lies from minus infinity, say 2. Minus infinity will always be into open, and this will be closed bracket, union 3 will be a closed bracket, and this infinity will be an open bracket. What does this closed bracket mean? It means 2 is a part of my solution, and in this case 3 is a part of my solution. That means if I put 2 here in place of x, so what do I get? 2 minus 2 is 0. So LHS is equal to RHS, because my equation I cannot have here. I can have here because my this inequality can be equal to 0 also. So 2 is a part of my solution and 3 is a part of my solution, right? So that is the difference in terms of greater than 0 or equal to 0. ये बात हमें समझ में आती है? Now, to be able to solve this question, what all we had to do, we have to take a case 1, we have to figure out the common solution, then we have to take case 2, and once again we have to figure out the common solution, and then we have to take the union of both the solutions. That is how we are able to solve it. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? हाँ जी, ऑनलाइन. Now, if we were to solve it in a slightly easier fashion, how can we do it? Let me explain to you this now. Once again, we are taking a same example. Let's say x square minus 5x plus 6 is greater than or equal to 0, and I am searching for a solution. So what do? यहाँ तक तो तुम्हें solve करना ही पड़ेगा. x minus 2 into x minus 3 is greater than or equal to 0. ठीक है, हमने ये कर दिया greater than or equal to 0. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है जो इसके सॉल्यूशन है. बेसिकली इस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मेरा 2 और मेरा 3, मतलब नंबर लाइन पे 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ पे आएगा. सब लोग को नजर आ रहा है यहाँ तक? नाउ फ्रॉम हियर व्हाट डू यू डू इज यू टेक दिस स्मॉल स्टेप. व्हाट स्टेप डू यू टेक? ओके, सो ऑल ऑफ यू विल डू दिस एक्सरसाइज. इफ यू कैन सी मी, सब लोग अपना हाथ ऐसे कर लो, जितने लोग बैठे हुए हैं ऐसे कर लो, ऑनलाइन भी जितने लोग देख रहे हो ऐसे कर लो. अच्छा, अब हमें क्या समझना है, हमारी जो इनइक्वालिटी है वो कैसी है? बड़ी है. हमारी इनइक्वालिटी कैसी है? बड़ी है. इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा हाथ है यहाँ पे रखो अपना हाथ, और बड़ी है बाहर चला जाएगा. बस यही आंसर है आपका, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और कुछ नहीं करना आपने. ठीक है, अब इस चक्रों में मत रहना, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आंसर यही आएगा. एग्जाम्पल मान लेते हैं, करके दिखा देता हूं. मान लेते हैं x प्लस 2 है इंटू एक्स माइनस 3. मान लेते हैं सोल्यूशन ऐसा आया. उस केस में क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, काम यही करना है अपने. हमने मान लो ये लाइन बनाई, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे -2 एंड +3, यही बनेगा. इज इनइक्वालिटी बड़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है. अपना हाथ ऐसे करेंगे और कहेंगे इनइक्वालिटी कैसी है? बड़ी है. क्वेश्चन सॉल्व. मतलब ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से जाएगा. इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है. दैट्स ऑल, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एंड ऑफ द क्वेश्चन. और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर. आप कह सकते हैं सर दोनों नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, तो सर इधर उधर हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, हमेशा आपका आंसर आएगा. दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन without any problem. मान लेते हैं x plus 2 x plus 3 is greater than or equal to 0. Once again what I need to do is solve it. Let us say this is the line. I have critical point as -3 and -2. बस ये ध्यान रखना, पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन सही होनी चाहिए नंबर लाइन पे. ऑफ कोर्स -3 लेफ्ट साइड में आएगा, -2 राइट साइड में आएगा. समझ में आ रही बात? हाथ ऐसे करेंगे, इनइक्वालिटी कैसी है? बड़ी है. इसका मतलब है मेरा आंसर जाएगा -3 से इंफिनिटी, और ये जाएगा -2 से प्लस इन्फिनिटी. सो द आंसर विल बी -3
माइनस इन्फिनिटी टू -3 ये ओपन ब्रैकेट है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मुझे क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ेगा। यूनियन -2 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये है तो यहाँ पे हमें क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ेगा। हमारा ये आंसर है, एंड ऑफ द स्टोरी। कोई चक्कर नहीं है, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, इट हार्डली मैटर्स। माय क्वेश्चन इज सॉल्व, एंड ऑफ द स्टोरी। तो सारे ही सोल्यूशन हो जाएंगे। हाँ, बट उसको लिखोगे कैसे -3? जब उसको हम सिर्फ -3 -2 लिखते हैं ना माइनस करके, तो वो सिर्फ पॉइंट एक्सक्लूड हो रहा है और रेंज नहीं एक्सक्लूड होती है। मान लो तुम्हें समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। ये आंसर नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ने, हाँ मतलब अपना आंसर, ये सोल्यूशन सेट है, ये जो सोल्यूशन सेट है ना, बाहर वाले हैं, ये मेरा आंसर है, ये वाला, इसमें ये वाला मेरा आंसर है, ये वाला आंसर है इसमें। तो आंसर कहाँ से नहीं आएगा? बीच में। मान लेते हैं अपन ये वाला लेते हैं, ठीक है, अपन ने ले लिया 1 नहीं, 2.5 इसके बीच में आएगा। अगर अपन 2.5 पुट करेंगे तो 2.5 - 2 इज 0.5, 2.5 - 3 इज -0.5, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे नेगेटिव आएगा, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, यानी गलत हो गया। एनी वैल्यू विच लाइज बिटवीन दिस टू, फॉर एग्जाम्पल अब ये ले लेते हैं, मान लेते हैं -2 से +3 के बीच में 0 आएगा, अपन 0 पुट करते हैं। 0 + 2 is 2, 0 - 3 is -3, +2 into -3 is -6, -6 is not greater than 0, रूल्ड आउट हो गया। तो ये मेरा आंसर नहीं है, बड़ा है, बाहर वाला मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है? ये होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमें करना है लेस देन 0। मान लेते हैं हमारा सेम क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमने किया x - 2 into x - 3 is less than 0 or less than or equal to 0. Once again the way we solve it is, दो केस बनेंगे, इसको पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मानो। मान लेते हैं मेरा केस 1 है, केस 2 मेरा बनेगा, इसको नेगेटिव मानो, इसको पॉजिटिव मानो, ये मेरा केस 2 बनेगा। आ रही बात समझ में? तो केस 1 केस 2 बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो लेना पड़ेगा, फिर उसका यूनियन बनाना पड़ेगा। जो हमने ऊपर किया वो हम पूरा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम एग्जामिनेशन में उतना सारा काम नहीं करेंगे, वी विल गो हेड विद अ स्लाइटली शॉर्टर मेथड। जो हमने अभी शॉर्टकट सीखा है सेम शॉर्टकट लगाएंगे। मान लेते हैं हमने ये सॉल्यूशन निकालना है, x - 2 into x - 3 is less than or equal to 0. So once again the first step would be we find critical points. So what is the critical point? Critical points are 2 and 3. ये critical point हो गए मेरे। अब अपने को क्या करना है? अब once again सब लोग हाथ अपना ऐसा करो, हाँ जी ऑनलाइन सभी लोग करना है इसको, तभी याद रहेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी पे ध्यान दो। इनइक्वालिटी कैसी है? छोटी है। कैसी है? छोटी है, यानी कि ये। तो मेरा आंसर बन जाएगा 2 से लेके 3, क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि ये लेस देन है, क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर ये सिर्फ लेस देन 0 होता तो मेरा आंसर ओपन ब्रैकेट आता 2 and 3, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। माय सॉल्यूशन सेट बनेगा ये मेरा सॉल्यूशन सेट है, और इसमें अपने को कोई लंबी चौड़ी कहानी करनी ही नहीं है। अब चाहे इसमें नेगेटिव आ जाए, दोनों पॉजिटिव आ जाए, दोनों नेगेटिव आ जाए, कोई चक्कर नहीं है। फिक्स किया, जो उसके बीच का रीजन होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इसको ज्यादा ही फीलिंग आ रही है कि कैसे क्यों, केस 1 केस 2 बनाओ। केस 1 से एक वैल्यू निकलेगी s लेस देन 2 केस, और एक निकलेगी s इज लेस देन 3, उन दोनों में कॉमन सोल्यूशन लो। दूसरे वाले में फिर बनाओ, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेके उसमें भी कॉमन सोल्यूशन निकाल के दोनों का यूनियन कर दोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। चल रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी को भी? ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती हैं, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ज्यादा बड़ी इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, जैसे क्यूबिक या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाते हैं। अगर वो पूरे फंक्शन है, जैसे हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक इक्वेशन या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन या 5th डिग्री इक्वेशन अगर है तो हमें फर्स्ट पहले उसका रूट निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर से करते हैं। अगर रूट निकलने के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे तो लोअर डिग्री इक्वेशन आ जाएगा, फिर वापस उसमें ट्रायल एंड एरर करके हमें उसका रूट निकालना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करके लोअर डिग्री ला जाएगा, एंड वी कीप ऑन ट्राइंग till we are able to get all the values. Now in this particular case, let me already give you the breakup as in, say for example I am having x - 3 into x + 2 into x + 7 divided by x - 8
लेट अस से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? अब ये मैं, अब वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ऊपर क्यूबिक आएगा, नीचे नीचे x माइनस 8 आएगा, बट उसको करना अपने आप में महाभारत है। किस सेंस में महाभारत है? कि पहले तो मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो और फिर क्वाड्रेटिक बनाओ। अब कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने, हो सकता है यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाती, x आ जाती या x+2 आ जाता, कुछ भी आ सकता था। एक बार मैं आपको सिर्फ ये वाला करा देता हूँ, उस केस में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे हमें ये समझने की जरूरत है। तो हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे। वंस अगेन इसके अंदर भी हमारा जो काम है वो यही है कि हम उसका क्रिटिकल पॉइंट पहले आइडेंटिफाई करें, हमें ये सॉल्व करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू यानी जो पॉजिटिव वाली है सबसे पहले उसको पकड़ो, सबसे छोटी वैल्यू है -7, उसके बाद इधर -2 आएगी, इधर से +3 आएगी और इधर से +8 आएगी। ठीक है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। फ्रॉम राइट हैंड साइड यू टेक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी आपका पॉजिटिव एरिया है ना वो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लास है using from right hand side you take a positive value, then you take a negative value, then you take a positive value, then you take a negative value, then you take a positive, alternatively plus minus। अब चूंकि हमें ये पूरे सिस्टम की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव, पूरे सिस्टम की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव इलाका होगा, यानी 8 से लेके इंफिनिटी। अब नॉर्मली ग्रेटर देन 0 है, तो आइडियली ये होना चाहिए, अभी समझाऊंगा लेकिन इसमें दिक्कत क्या है। आइडियली ये होना चाहिए यूनियन -2 से -3, सॉरी +3, यूनियन -∞ से -7, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो माइनस, अब ये इसमें दिक्कत सिर्फ ये कि यू कैनॉट हैव 8 इन द डिनोमिनेटर बिकॉज वी कैनॉट सी, वैसे तो इंक्लूडिंग होना चाहिए, हाँ, अगर 8 ले लिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसको ओपन ब्रैकेट रखना पड़ेगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 नहीं आ सकता ना। हाँ। मान लेते हैं ये क्वेश्चन होता, यहाँ नेगेटिव होता, तो मेरा नेगेटिव एरिया मेरा आंसर हो जाता एंड ऑफ द। मान लो लेस देन 0 होता ना, तो माय आंसर वुड हैव बीन -7 से -2, 3 to 8। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, हाँ जी, बस मैं अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आधे पौने घंटे में फ्री हो जाऊंगा, फिर आप अभी आ जाएंगे तो अभी कर लेंगे।
हाँ 6 का दे दीजिए। हाँ जी, समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेगेटिव है तो ये बनेगा मेरा नहीं मैंने लेस देन दिया है ना वैसे भी, रुको एक सेकंड अभी बताता हूं। अभी सिर्फ लेस देन 0 है ना, देखो इसका मतलब क्या है कि लेस देन 0 है यानी 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता मतलब आप x को 3 ले नहीं सकते, क्योंकि 3 लेते ही 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब 3 इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, तो ओपन लेना पड़ेगा। 7 अगर अपन ने -7 ले लिया तो x -7 प्लस x 0 बन जाएगा, उस केस में भी ये 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ अब मान लेते हैं अपन यही क्वेश्चन कर लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मींस दिस एक्सप्रेशन इज अ 0 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। So -7 and -2 are both acceptable solutions, and of course इसके बीच वाला भी acceptable है, मतलब x को अपन ने माइनस इसमें इसमें हाँ तो ये इसका आंसर ये है ना, देखो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और इसका आंसर मैं लिख रहा हूं नेगेटिव एरिया का। ठीक है, -7 इज इंक्लूडिंग, -2 इज इंक्लूडिंग, यूनियन 3 is including, it should be including, but it is not including because it is in denominator. एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो सारे ऑप्शंस के अंदर वाली जो चीजें हैं ना वो सेम मिलती है 90% केसेस में, गड़बड़ होएगा ब्रैकेट में, वो समझ में आना चाहिए, और खासतौर पे फंसता कहाँ है, डिनोमिनेटर में। आ रही बात समझ में? ठीक, कई बार क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं ग्रेटर देन 0 में परफेक्ट स्क्वायर दे दिया जाए। मान लेते हैं मैंने कहा कि x, ये क्या लिखा था मैंने, +2 ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसको लेना है अपन ने। उस केस में जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ना वो क्या बनेंगे, नहीं अपन उस केस में इसको भूल जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए। अब x को आप +2 डालें, -2 डालें, +8 डालें, कुछ भी डाल दें, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन माय चेंज ऑफ साइन, उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो हमारा फैक्टर चेंज इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब जो मेरा इंपैक्ट करने वाला है वो -7 करने वाला है, +3 करने वाला है और +8 करने वाला है। अगर पॉजिटिव इलाका चाहिए तो 8 से लेके इंफिनिटी, ऑब्वियसली इंक्लूड भी करना है, बट इसमें हम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया। यूनियन -7 से -3 दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ये आंसर बनेगा, बिकॉज दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी फैशन। राइट साइड से हमेशा पॉजिटिव में स्टार्ट करना है। तो इससे क्या है कि थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं हम वो भी सॉल्व कर पाएंगे। क्यूब होता तो डिपेंडेंसी हो जाती, हाँ तो क्यूब होता तो देखना पड़ता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी इवन पावर होती और हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो इंपैक्ट नहीं करेगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज द होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इन दिस केस। हाँ जी, बन रही है बात सभी की? Okay, so this takes care of your inequalities in terms of quadratic or little bit of higher degree equations. उसके बाद बस आता है हमारा linear inequality. आते हैं हाँ, मतलब पता है क्या, उस वक्त तो अभी तो हम बहुत कॉन्शियस हैं कि ये करना है, उस वक्त स्पीड, प्रेशर, टाइम भूल जाते हैं, तो यही क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज डुएबल है। कुछ आए हूँ
तो हाँ तो होना ही है, क्योंकि वो एनीवे 10th या उससे थोड़ा सा लेवल ही पूछता है, कोई नया तो मांगेगा नहीं, वो वही चीज टेस्ट कर रहा है जो हमने कभी ना कभी पढ़ाई करी हुई है. Okay, now we'll just understand linear inequality also in another maybe half an hour maximum, and then we can wrap it for the day. Linear inequality. We take the standard question, right? 2x plus 3y is equal to 4. हम ये solve करते हैं, और हमने पिछली क्लासेस में इसको solve करके एक ग्राफ बनाया हुआ है, right? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम कहते थे दिस विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. तो x और y है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 4/3 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये मेरा एक पॉइंट है. ठीक है, ये 0 है, 4/3 है, ये यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है. ठीक है, ये मेरे 2 पॉइंट आ गए. तो अगर मैं इसको so this is the line which is representing my equation 2x plus 3y is equal to 4, right? Now this question could have been 2x plus 3y is greater than 4, greater than equal to 4, less than 4, less than or equal to 4. Once again there are जैसे उसमें greater than or equal to था वैसे इसमें है. तो मान लेते हैं हम अब हम मान लो सिर्फ पहले वाले की स्टडी करते हैं, ये वाला. तो अगर हम ये चाहिए 2x plus 3y is equal to 4, तो ये तो लाइन हो गई, लेकिन मेरा जो वैल्यू है वो greater than 4 है. greater than 4 का मतलब है my answer will lie either above this line, इस लाइन से ऊपर होगा मेरा आंसर, और इट विल लाई बिलो दिस लाइन, या तो नीचे होगा. अब ये कैसे पता चलेगा कि ऊपर है या नीचे है? उसके लिए व्हाट वी अप्लाई इज नोन एज ओरिजिन टेस्ट. ओरिजिन टेस्ट क्या होता है? ये ओरिजिन है इसका, 0 0 है. हम ये देखते हैं कि क्या 0 0 इज अ पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन और नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन. मतलब अपन ने मान लो x0 डाला, y0 डाला, तो 0 + 0 कितना होगा? 0. क्या 0 इज ग्रेटर देन 4? क्या ये बात सही है? ये बात गलत है. इसका मतलब है 0 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, यानी इस लाइन के नीचे वाला एरिया मेरा सोल्यूशन नहीं है. तो जो मेरा सोल्यूशन है वो बेसिकली ये वाला है, ये, दिस इज माई सोल्यूशन, राइट? So what is the difference between greater than 4 or greater than or equal to 4? What does it really mean? It really means that are the points on the line part of my solution or not? इसके ऊपर कितने पॉइंट्स है? इन्फिनिटी. अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बिंदियां इसके ऊपर लाई कर रही हैं, क्या वो मेरा सोल्यूशन है या नहीं है? अगर ग्रेटर देन 4 है तो वो मेरा सोल्यूशन नहीं है, और अगर इक्वल टू 4 है तो मेरा सोल्यूशन है. ग्राफ के अंदर जब डॉटेड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती है, कई बार आप देखोगे ऐसे ना, जो ग्राफ होता है उसमें ऐसे डॉटेड लाइन होती हैं. तो अगर डॉटेड लाइन है ऐसे ऐसे, इसका मतलब है कि जो लाइन, पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन. लेकिन अगर सॉलिड लाइन है, मतलब एकदम थिक लाइन, मतलब सॉलिड लाइन बनाई हुई है, दैट मींस पॉइंट विच लाई ऑन दिस लाइन आर ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन. यही काम अपने को इसमें करना है. मान लो अपने लेस देन 4 है, तो अपन ने ओरिजिन टेस्ट किया, तो ओरिजिन टेस्ट किया तो 0 + 0 इज लेस देन 4, ये बात सही है. इसका मतलब मेरा सोल्यूशन सेट कहां है? नीचे. 0 इज अ पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन इन ऐसा. ठीक है. अब क्या जो पॉइंट इसके ऊपर है वो मेरा सोल्यूशन है? इसके अंदर तो नहीं है. लेकिन अगर मेरा फंक्शन ये है, सो द पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन, मतलब पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन आर पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन. बस ये डिफरेंस है सॉलिड लाइन और इनइक्वालिटी में. हाँ, ब्रैकेट वाला काम हो गया. वो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई सॉलिड लाइन का मतलब है कि जो पॉइंट्स उस पे है वो मेरा पार्ट है, और अगर वो पॉइंट नहीं है तो वो मेरा पार्ट नहीं है. अपने को बस ये समझना है. ठीक है. अब इसका जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन का, एग्जाम क्वेश्चन, मैं एक वो एग्जांपल ले लेता हूं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. तो कुछ साल पहले जब क्वेश्चंस आए हैं तो सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, इस पे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो लंबा क्वेश्चन बनता है. वो मैक्सिमा मिनिमा पे आता है. जैसे कि मान लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारे पास 2 तरह के पर्स हैं. ठीक है, पर्स 1 और पर्स 2. हाँ, वेट कर रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक. जस्ट गिव मी गाइस से समबडी, आई एम जस्ट कमिंग बैक. ठीक है, मैं 1 मिनट इसको पॉज कर देता हूँ. कहाँ गया? स्टॉप नहीं, वो गड़बड़ करता है स्टॉप में. ओके.
Okay, so I was saying we'll take one example and that should be able to help us to understand the complexities of this entire linear inequality. So normally we have to maximize profit or minimize cost. बिजनेस में ये होता है या तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए या कॉस्ट कम से कम हो जाए. तो उसका हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं. मान लेते हैं हमारे पास 2 पर्स हैं, पर्स 1 एक पर्स 2 है. मान लेते हैं पर्स 1 पे अपने को 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है और पर्स इस पे 12 रुपए का प्रॉफिट मिलता है मान लेते हैं. तो पर्स 1 जब बनाते हैं तो उस पे 2 मशीनों पे काम होता है. पहली मशीन ये है, दूसरी मशीन ये है. मान लेते हैं इसको बनाने के लिए इस पे 2 घंटे लगते हैं, इस पे 3 घंटे लगते हैं. और एक सेकेंड पर्स है, उसको इस मशीन 1 पे मान लेते हैं हमें करीब 4 घंटे लग जाते हैं और इसमें मान लेते हैं हमें इस पे 2 घंटे मान लेते हैं. ठीक है, इस टाइप से लग जाता है. और मशीन जो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स एक मशीन पे हम काम कर सकते हैं, मान लेते हैं 100 घंटे हमारे पास हैं काम करने के लिए और इस पे भी मेरे पास 100 घंटे हैं काम करने के लिए. ये एक सिचुएशन बनती है. सिंप्लेक्स या क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स मेथड बोलते थे. हाँ, तो हाँ IS वाले में एक आध, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है लेकिन कंस्ट्रेंट होती है टाइम की. तो अब इसमें हमें 3 फंक्शंस बनाने हैं. एक हम जिसको एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं जेड मैक्स यानी वो वैल्यू जो हमें मैक्सिमाइज करनी है. हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. तो क्वेश्चन ये आता है कि पर्स 1 में कितना बनाऊं और पर्स 2 में कितना बनाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. आप ये कह सकते हैं सर पर्स 2 ही बना लो सारे, पर्स 1 क्यों बनाते हो? क्योंकि कंस्ट्रेंट्स आती हैं तो हम बना नहीं सकते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि दोनों ही बनाने पड़ेंगे लेकिन एक ऑप्टिमल वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है. तो वो हमें ऑप्टिमल वैल्यू निकालने में कितने पर्स पहले बनाए P1 और कितने सेकंड टाइप के बनाए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. तो इसका मतलब है मान लेते हैं मेरे को P1 X पर्स बनाता हूं और P2 Y बनाता हूं. हमें निकालना है क्या X लें और क्या Y लें ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. यानी जो Z मैक्स मेरा फंक्शन है वो बनेगा 10X + 12Y. समझ में आ रहा है? मेरा फंक्शन है 10X + 12Y. ये मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि मान लो 2 पर्स बनाए तो 20 रुपए प्रॉफिट, 3 पर्स बनाए तो 36 रुपए. 20 और 36 56 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा. इस टाइप से है. हाँ, अभी हम देखते हैं पर्स 1 क्यों ज्यादा बनाने चाहिए, क्या बनाने चाहिए. अब जब मान लो X हमने पर्स 1 X बनाया तो मशीन 1 पे कितना टाइम लगेगा इसको? मशीन 1 पे X 2X घंटे खा जाएगा और मशीन 2 पे कितना घंटे खा जाएगा? 3X खा जाएगा. सेकेंड पर्स जब हम Y बनाएंगे तो मशीन 1 पे कितना टाइम खाएगा? 4X और मशीन 2 पे कितना खाएगा? 2X. अच्छा 2X क्यों? Y ये 4Y और ये 2Y. ठीक है, मशीन 1 पे मशीन 1 पे सेकेंड पर्स 4Y लेगा और मशीन 2 पे सेकेंड पर्स 2Y लेगा. तो अब मशीन 1 पे मेरे पास टोटल टाइम कितना है? 100. यानी दिस प्लस दिस की जो वैल्यू है, यानी पहला पर्स बनेगा और दूसरा पर्स बनेगा, विल बी लेस देन और इक्वल टू 100. सिमिलरली दिस प्लस दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 100. इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स. ओके, उसी तरीके से मेरे पास एक और कंस्ट्रेंट है, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y हैज टू बी ग्रेटर देन. क्योंकि जो नंबर ऑफ पर्स है वो 0 से तो कम हो नहीं सकता. यानी कई बार क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर. तो बेसिकली 4 कंस्ट्रेंट्स है, 1 2 3 4. अब हमें निकालना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी. तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्राफ. मान लेते हैं x + 2x + 4y इज लेस देन 0. अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका लाइन ग्राफ बनाएं तो ये बन जाएगा x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 100. तो इसको 0 मानेंगे तो x0 y50 बनेगा. तो x0 y50 मान लेते हैं यहां बनेगा. ठीक है, x0 y25. चलो तो 0 25 बनेगा और इसको 0 माना तो ये 50 यहां बन जाएगा. 50, 0.
यानी कि ये वाली जो मेरी इक्वेशन बनेगी पहले वाली, वो ये लाइन बनेगी। ओरिजिन टेस्ट करेंगे 0 0 लेस देन 100, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, इसके नीचे लाई करेगा। सेकंड, अगर हम इसका करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, ठीक है। और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना बन जाएगा, 33.33, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा ये। अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी मेरा सारा इस तरफ आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी मेरा ग्राफ राइट हैंड साइड में, y ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर। यानी इन दोनों से मुझे क्या पता लग गया, मेरा सारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। और उसमें भी जो मेरा कॉमन एरिया है वो कौन सा एरिया है, अंदर वाला, ये कॉमन एरिया है। इसका मतलब है दिस एरिया विल सेटिस्फाई माय दिस 4 इक्वेशंस। ये मेरा सॉल्यूशन सेट है। बिल्कुल सही, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन सेट। यानी कोई भी पॉइंट जो इस येलो एरिया में है वो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है, इस एरिया में जो भी रीजन है वो मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। बट हमें तो चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमा जो आता है ना वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आता है। तो या तो मेरा आंसर यहां लाई करेगा इस पॉइंट पे, या तो मेरा आंसर लाई करेगा इस पॉइंट पे, या तो मेरा आंसर लाई करेगा इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्सट्रीम पॉइंट पे आंसर आता है। तो अब हम इन चारों पॉइंट्स को मान लो 0 0 पुट करके देखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, मान लेते हैं। अगर हमने इसको 33.330 पुट करके देखा तो हमारे पास कुछ और वैल्यू बनेगी, 0.25 बना तो हाँ, तो जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिस पॉइंट पे, इन्हीं चारों में से मेरा एक आंसर होगा, वो मेरा आंसर होगा। हाँ, जरूरी नहीं है, मान ले, क्योंकि ये पॉइंट, हाँ दोनों ही तो बनाने, तो भी कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट लेना है। एक 0 आके भी दूसरे वाला आंसर बन सकता है। तो चूंकि ये सारा काम करना पड़ता है तो नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। बट इसका एक और तरीका भी करने का, क्योंकि 4 ऑप्शंस मिलेंगे। मान लो अगर XY मिल गया तो या तो हम ये कर सकते हैं भाई चारों ऑप्शन को इसमें डाल के देखते हैं, जो मैक्सिमम होगा वो इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो नेक्स्ट मैक्सिमम उठा के देख लो। नेक्स्ट मैक्सिमम जो है वो इन चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका कई बार ये होता है, जो ऑप्शन है उसकी देख लो कौन कौन सी ऑप्शंस मेरे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन दो जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको यहाँ डाल के देख लो किस में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो मेरा काम चल जाएगा। तो इस केस में हमें ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, है? हाँ, लेकिन चूंकि इनइक्वालिटी है, इसका जो एप्लीकेशन है वो मेरे को समझाना जरूरी था कि क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे हम ऑप्शन ना कर पाए। मान लो उसने Z मैक्स की ही वैल्यू दे दी, समझ में आ रहा है? तो अब X और Y तो पता नहीं है, तो X और Y निकालना भी पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा, फिर जाके हमें करना पड़ेगा। थीटा क्वेश्चन आ गया तो भी फंस जाएंगे, बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया। इसलिए हमें ये समझना जरूरी कि इनइक्वालिटी है क्या, मतलब क्या है और पर्पस क्या है। बस ये हमारी लीनियर इनइक्वालिटी बनती है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हमने दो, और उसके बाद एक चीज बनती है मॉड्यूलस, वो हम अगली क्लास में करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन एनीबडी, एनी प्रॉब्लम्स? भावना, ज्योति, पूजा, राहुल, रुचि, सुगंध, सुमित, तन्वी। हाँ जी, एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, and I would expect you to solve all these questions, and we will keep an off on Friday, right? I'll send you a message by tomorrow once my schedule finalizes. So we may not have a maths class on Friday, and then Monday onwards we can continue again in full fashion. So whatever time you get tomorrow and day after tomorrow, I expect you to really,
catch up with whatever we have, done so far. Right? Chaliye. That should be all from my side. Thank you very much and have a very nice day. Thank you so much.